دین کے مجاہد یوٹیوب چینل سبسکرائب. دین کے مجاہد یوٹیوب چینل سبسکرائب. نابینا بچہ وہ اتنے اچھے انداز میں اور بھی سارے بچوں نے بہت اچھا پروگرام کیا. واقعتاً ہمیں یہ پروگرام دیکھ کر احساس ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کوئی چیز لی ہے تو بہت ساری چیزوں سے نوازا بھی ہے. اللہ نے، اللہ کا یہ احسان اور کرم ہے. آج اللہ نے ہم کو دیکھنے والا بنایا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہم کو سننے والا بنایا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہم کو بولنے والا بنایا، بولو سبحان اللہ. اللہ نے ہمارا دل، دماغ، ہاتھ پاؤں کو سلامتی دی ہے. سب آمین کہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب بچوں کو قبول فرمائے. اللہ انہی میں سے حافظوں کی جماعت پیدا فرمائے. اللہ انہی میں سے علماء کی جماعت پیدا فرمائے. بلکہ میں کہوں گا یہ جو بچے ہیں نا، اللہ ان کو دین اور دنیا دونوں علوم اور دونوں ایجوکیشن سے مالا مال فرمائے. میں اس وقت جب یہ بچوں کا پروگرام ہو رہا تھا، واقعتاً یہ بہت اچھا پروگرام تھا. یعنی ہم بہت سارے جلسوں میں جاتے ہیں لیکن ایسا جلسہ اور ایسا پروگرام تو ہم کو نظر نہیں آتا. اس لیے میں بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گا ہمارے ہدایت بھائی کا. کہاں بیٹھے ہدایت بھائی کا؟ سب آمین کہو. اللہ اس بندے کی عمر میں برکت عطا فرمائے. کیونکہ ہمارے یہاں اگر ایک ڈیزیبل بچہ ہو، ایک ہینڈی کیپ بچہ ہو، آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ماں اور ابا کتنا پریشان ہوتے، کتنا پریشان. میں جب ان کے مدرسے میں گیا، ایک ہی وقت میں میں نے 25 بچوں کو دیکھا اور سنبھالنے والے یہ ہدایت بھائی ہے، ان کے والد محترم ہے. اللہ ان دونوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے ان کو جیسے جنتی بنا کر بھیجا ہے. اور آج کا یہ جو پروگرام ہوا ہے، انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے بھی جنت کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بیٹے ایان کا بھی نکاح ہونے والا ہے. ہماری بیٹی بشرا کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے. آمین کہو. اللہ وہ ہونے والے نکاح کو بھی قبول فرمائے. لیکن یہ دو باتیں مجھے کرنا، وقت میرے پاس بہت کم، بات کو جلدی سمیٹنا ہے. میں ابھی بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا کہ یہ علم، یہ نالج، یہ قرآن کتنا پیارا کلام ہے. سب کہو اللہ کی قسم، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. ساتھ میں کہو نا، قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قرآن پاک کی محبت ہم کو عطا فرمائے. ہمارے آقا، بولو نا، ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے فرمایا، کتنے پیار سے فرمایا، ارے میرا امتی، مرد یا عورت. ہمارے نبی نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھ لے 10 نیکیاں ملے گی. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم پڑھنے والے کو 30 نیکیاں ملے گی. اور پورے قرآن میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے. اندازہ لگاؤ قرآن پاک پر اللہ نے کتنا انعام رکھا. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آ رہی، ذرا بلند آواز سے. باقی میرے کو تو پہلے ہی احساس ہو گیا کہ مجمع بڑا کنجوس بیٹھا ہوا ہے. کیونکہ یہ جو بچے پروگرام کر رہے تھے، ماشاءاللہ دینے والوں نے بہت دیا، لیکن ایسا سرپرائزیبل پروگرام ہو اور ایسا عجوبے والا پروگرام ہو، اس میں تو ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے. خیر کوئی بات نہیں، آپ بچوں کے لیے دعا کریں گے، ہم سب بھی دعا کریں گے، لیکن ابھی تو سبحان اللہ بول دو. سبحان اللہ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اقول الف لام میم حرف لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ، پڑھاتے جاؤ. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یہ 3 حروف کے ادا کرنے میں 30 نیکیاں ملے گی. آج یہ پورا مجمع، میں ایک ہی بات آپ سے کہنے کے لیے آیا ہوں، پورا مجمع میرا ساتھ دے گا. دو گے نا؟ ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ بس اتنا میرے کو بتاؤ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور یہ ہمارا زمانہ ڈیفرنس ہے کہ نہیں؟ بگ ڈیفرنس. کیونکہ ہمارے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس زمانے میں لیپ ٹاپ
हमारे पास कैलकुलेटर, कंप्यूटर, हमारे पास मोबाइल, हमारे पास टेक्नोलॉजी, हमारे पास 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, हमारे पास ट्रेनें हैं, हमारे पास हवाई जहाज है, हमारे पास लंबी चौड़ी कश्तियां हैं, लंबी चौड़ी मशीनें हैं। मेरे प्यारो सच बताओ, वो जमाने में ये सब था? हमारे पास यहाँ पेट्रोल का इंतजाम हो रहा है, डीजल का इंतजाम हो रहा है, इलेक्ट्रिक का इंतजाम हो रहा है, गैस का इंतजाम हो रहा है। ये सब वो जमाने में था? बोल, साथ में बोलो ना, वो था? नहीं था। इसीलिए एक सहाबी आए थे, ये सुनो बड़ौदा वालों, एक सहाबी आए थे और बड़े प्यार से पूछा था, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमाना बाद में आएगा, हम नहीं रहेंगे, फिर उसके बाद एक जमाना आएगा, फिर एक जमाना आएगा, फिर एक जमाना आएगा। वो सहाबी ने कहा, अल्लाह के रसूल का जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे, खाना पीना बदलेगा, रहना सहना बदलेगा, लोगों का लिबास बदलेगा, तो उस वक्त कामयाबी का रास्ता क्या है? उस वक्त जैसे आज के हालात में कामयाबी का रास्ता किया है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। क्या उम्मत से मोहब्बत थी, क्या उम्मत से मोहब्बत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो सब लोग सुनो, और कयामत तक ये आवाज पहुंचा देना, 2 चीजें छोड़कर जाता हूं। पूरा मजमा साथ में बोलेगा, हमारे नबी ने फरमाया। कितनी चीजें? आवाज नहीं आ रही। कितनी चीजें? और बुलंद आवाज से बोलो, कितनी चीजें? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, अगर उन दोनों को थाम लोगे, दुनिया भी तुम्हारी होगी, जन्नत भी तुम्हारी होगी। बोलो सुभान अल्लाह। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये दोनों चीजों को आप छोड़ दोगे, इससे अलग हो जाओगे, हमारे नबी ने फरमाया, खिज़्युन फी दुनिया, बहुत जलील हो जाओगे, दुनिया में बहुत जलील हो जाओगे, वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में भी जहन्नम का फैसला होगा। अब मेरे दोस्तों बताओ, हमारे नबी से बढ़कर कोई सच्चा होगा? और ये महीना कौन सा? अरे बोलो ना, कौन सा महीना? किसका महीना? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान ये मेरा महीना है, और रमज़ान ये अल्लाह का महीना है। ये महीना मोहम्मद का महीना है, आने वाला महीना अल्लाह का महीना है। अब मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, मुबारक महीना, और हमारे नबी ने फरमाया, 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ। कौन कौन तैयारी है 2 चीजों को अपने हाथ में थामेंगे इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करें ना, ऊपर करें, दोनों हाथ ऊपर करें, और ये कहे कि अगर ये 2 चीजें मेरे और आपके पास आ गई, हमारे माँ बहनों के पास आ गई, अल्लाह की कसम, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी। बोलो सुभान अल्लाह। जब सहाबा किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो 2 चीजें बताओ ना, कौन सी 2 चीजें? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 अल कुरान। बोलो क्या फरमाया? कुरान। कुरान का दामन थाम लो। थामोगे इंशाअल्लाह? कुरान सीखो, सिखाओ। अगर अल्लाह ने अब तक सीखने की तौफीक नहीं दी है, उम्र मत देखो, अपने एज फैक्टर को मत देखो, कुरान सीखो, सिखाओ। अरे घर में कुरान पाक पढ़ते जाओ। अगर ये कुरान हमारे हाथ में रहेगा, इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी, आखिरत भी हमारी। कौन कौन तैयार है कुरान पाक से मोहब्बत करेंगे? बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। आज ये बच्चों को देखकर मुझे एक बहुत प्यारी बात याद आई कि जब कुरान पर नजर होती है तो अल्लाह क्या इज्जतों से माला माल करता, कितनी इज्जतों से माला माल करता। मेरे प्यारो, आपको मालूम होगा एक जमाने में बादशाह गुजरे, हारून रशीद, नाम सुना है आपने? भाई जल्दी जल्दी बोलो ना। भाई देखो, अयान का निकाह है, तुम्हारा निकाह नहीं है। वो तो मैं जब ये स्टेज पर आया ना मौलवी फिरदौस, तो मैं बहुत चौंका कि ऐसा प्यारा स्टेज तो मेरे को भी निकाह के वक्त नहीं मिला था। हाँ मुफ्ती इमरान, आपको भी नहीं मिला होगा। बुलाया मस्जिद में, हो गए निकाह, हो गए, चले गए। चलो मैंने कहा कुछ नहीं, थोड़ा सोचते रहिए, और क्या करेंगे। हाँ तो पूरा मजमा कहेगा, एक बादशाह गुजरे। बोलो क्या नाम?
हारून रशीद। और बड़ा मजमा हारून रशीद ने ऐलान किया कि इस वक्त दुनिया का सबसे इल्म रखने वाला, नॉलेज रखने वाला एक 80 या 90 साल का बूढ़ा आज हमारे दरमियान में आ रहा है। अब जाहिर बात है वो बादशाह का स्टेज होगा तो कैसा स्टेज होगा, और पूरी जनता को जमा किया और सबको का जरूरी है, क्योंकि इस वक्त जमीन पर सबसे ज्यादा ज्योग्राफी के बारे में जानने वाला, साइंस के बारे में जानने वाला, लॉजिक के बारे में जानने वाला, बायोलॉजी के बारे में जानने वाला और डिबेट यानी मुनाजरा करने वाला आज एक शख्स मेरे दरमियान में आ रहा है और हमारी दावत पर आ रहा है, यानी शाही मेहमान बन के आ रहा है। 80 साल उसकी उम्र है और अकेला नहीं आ रहा है, अपने साथ अपने 200 स्टूडेंट्स को लेकर आ रहा है। इसलिए पूरा मजमा जमा हो गया, पूरा मैदान गचागच भरा हुआ था। और जो स्टेज बना था ना, उस पर कितनी कुर्सियां थी? बोलो साथ में बोलो, कितनी कुर्सियां थी? 2। एक पर तो बादशाह खुद बैठे, कौन? हजरत हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह बादशाह बैठे, और दूसरी कुर्सी पर वो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा, जिसके बारे में मशहूर था कि इसके इल्म का, इसके नॉलेज का, इसके एजुकेशन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस मामला खराबी का ये था कि वो जो 80 साल या 90 साल का बूढ़ा था, हर इल्म के मैदान में, हर फील्ड में बहुत आगे था, मगर अल्लाह को नहीं मानता था। बोलो अल्लाह को नहीं मां। पूरा मजमा बैठा है। अच्छा, वो जो बूढ़े मियाँ आ गए 80 साल के या 90 साल के, वो आकर बैठ गए। भाई आकर बैठ गए, उन्होंने भी देखा कि बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है, और मजमे में उलमा किराम की एक लंबी चौड़ी जमात नजर आती है। अब वो बूढ़े मियाँ ने क्या किया मालूम है? हारून रशीद जो बादशाह थे, उनके कान में कहा कि देखो मैं तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, तो यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो अल्लाह को मानते हैं। मैं 3 सवाल करूंगा, अगर मुझे कोई जवाब दे दे तो ठीक है, जवाब दे दे बहुत अच्छा, हाँ, लेकिन अगर कोई जवाब ना दे, खड़ा हो जाए और फिर मेरे 3 सवाल का जवाब ना दे, तो बूढ़े ने हारून रशीद बादशाह को कहा कि आप हुक्म दे दे कि उसको दुनिया में रखा ही न जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए। तो हारून रशीद ने ऐलान कर दिया कि भाई देखो इतना लंबा चौड़ा मजमा है और सारे उलमा बैठे हैं, हुफ्फाज़ किराम बैठे, कुर्राए किराम बैठे, दीन दुनिया दोनों उलूम रखने वाले बैठे हैं। ये बूढ़े मियाँ इस वक्त कहते हैं कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन मैं अल्लाह के बारे में 3 सवाल करूंगा, अगर ये पूरा मजमा में से कोई जवाब दे दे बड़ा इनाम होगा, और अगर नहीं जवाब दे तो इनका हुक्म है कि उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। अब बताओ, आप लोग बताओ, जब ऐसा कोई आदमी स्टेज पर आए और ऐलान करे, कोई खड़ा होगा? अरे बोलो, कोई खड़ा होगा? क्योंकि सबको मालूम है कि इल्म का मामला है, नॉलेज का मामला है, एजुकेशन का मामला है, तालीम ताल्लुम का मामला, ये तो बहुत आगे। और ये 80 साल का बूढ़ा, 90 साल का बूढ़ा, इसका एक्सपीरियंस और इसका तजुर्बा कहाँ से कहाँ होगा, तो कोई खड़े होने को तैयार नहीं। बल्कि अगर कोई बेचारा खड़े होने को भी तैयार हो ना, तो दूसरा उसको पकड़ के बिठा दे, बैठ जा, काय को अपनी बीवी को बेवा बनाएगा, काय को अपने बच्चों को यतीम बनाएगा, बैठ जा बैठ। लेकिन मेरे प्यारों, आपको बहुत ताज्जुब होगा, ऐसा लंबा चौड़ा मजमा बैठा है, एक जवान जिसकी उम्र है 18 साल। बोलो उम्र कितनी? नाम है नौमान। नाम बोलो नौमान। वहाँ कई कोने में कपड़े भी फटे हैं, चेहरे से लगता है कि खाना वाना भी बराबर खाए नहीं। वो वहाँ से खड़े हो गया और खड़े होकर कहा कि मैं तैयार हूँ, ये 3 सवाल पूछे, मैं 3 सवालों के जवाब दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। कितने साल के लड़के ने? 18 साल। नाम क्या है? नाम याद रखना, नाम क्या है? नौमान। तो ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, इन्होंने बड़े ताज्जुब से कहा कि बड़े बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, कोई खड़ा नहीं होता, 18 साल का जवान काय को खड़ा होता है? अरे अभी तो जवानी में कदम रखा है, अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई होगी, ये क्यों अपने आप को मौत की तरफ लेके जाता है? बस ये बूढ़े मियाँ ने इतना कहा कि वो 18 साल के जवान ने जो कुरान पढ़ के सुनाया, बोलो सुभान अल्लाह। आज इन बच्चों को देखकर वो याद आया, वो 18 साल के जवान ने कुरान पढ़कर सुनाया, कहा कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? 18 साल के जवान ने कहा मैंने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा? तो कहा कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, यहाँ बादशाह का ऑर्डर आएगा। 18 साल के जवान ने कहा नहीं, हमारे अल्लाह ने कुरान में कहा है जिंदगी देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी वही है। बोलो सुभान अल्लाह। जिंदगी देने वाला भी वही है, मौत देने वाला भी अल्लाह ने फरमाया। वो जवान 18 साल के जवान ने 11वें पारे की आयत करीमा को पढ़ा, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत वमा लकुम मिन दूनि
अल्लाह ही जमीनों का पैदा करने वाला कौन, अल्लाह ही हमें जिंदगी देने वाला कौन, अल्लाह ही हमें मौत देने वाला कौन। अब बताओ, ये जो बूढ़े मियाँ थे, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, ये जो बूढ़े मियाँ थे ना, इनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो वहां पीछे से कह रहा है और कुरान पाक का हवाला दे रहा है, अल्लाह की बातें कर रहा है। कहा, आजा मैदान में आजा, मुझे लगता है कि मौत तेरे करीब आ गई है, आजा सामने आजा। अच्छा, वो जवान, बोलो कितने साल, नाम क्या, नौमान, ऐसे सामने, क्योंकि स्टेज तो बहुत ऊंचा था, बादशाह बैठे, दो ही तखत थे, एक पर बादशाह बैठे और एक पर वो 90 साल का वो बूढ़ा, एक्सपीरियंस वाला, नॉलेज वाला बूढ़ा बैठा। वो बेचारे 18 साल का जवान सामने खड़े हो गए, चेहरे से मालूम होता है कि खाना मिला नहीं मिला, कपड़े भी फटे हुए। इन्होंने कहा मैं 3 सवाल पूछूंगा। कहा कि पूछो। अब आप लोग बताओ, इजी सवाल होंगे कि मुश्किल होंगे? मुश्किल होंगे, क्योंकि उसको भी तो अपनी इज्जत का मामला है। उसने पहला सवाल ये पूछा, क्या आप लोग कहते हो सबसे बड़ा कौन? नहीं बोलो ना, सबसे बड़ा कौन? तो अल्लाह के ऊपर कौन? इसका पहला सवाल अल्लाह के। उसने समझाया हम इंसान, जिन्नात और हमसे पहले फरिश्ते और मालूम नहीं कितनी कौमें पहले आई, सबका पैदा करने वाला कौन? वो कह रहा है आप लोग कहते हो सबका पैदा करने वाला कौन, तो अल्लाह के ऊपर कौन? ये कौन सा सवाल हुआ? ये फर्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा कि चलो दूसरा सवाल भी पूछता हूँ। दूसरा सवाल, मुझे ये बताओ कि तुम अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह देखते कहाँ है? भाई अल्लाह देखते, अगर अल्लाह यहाँ फ्रंट में देखते हैं तो पीछे गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? और अगर अल्लाह राइट में देखते हैं तो लेफ्ट में गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? और अगर अल्लाह ऊपर देखते हैं तो नीचे गुनाह करो, किसी को क्या पता चलेगा? अल्लाह कोई एक सिमत में देखते होंगे, बाकी सिमतों में तो जो चाहे अपनी मर्जी करो। देखने में जाओ तो थोड़ी देर के लिए बताओ, अभी मैं बैठा हूं, मैं कहां देख रहा हूं? अरे बोलो ना, कहां देख रहा हूं? आगे। अब अगर पीछे ही कोई खर्राटे लेके सोता हो, मेरे को मालूम होगा? राइट में कोई बात करता होगा, मेरे को मालूम होगा? नहीं। लेफ्ट में कोई बात करता होगा, मेरे को मालूम होगा? तो तुम्हारे अल्लाह देखते कहाँ? कोई एक जानिब अल्लाह देखते होंगे, बाकी जानिब का क्या होगा? कितने सवालात हो गए? और तीसरा सवाल तो बूढ़े ने कहा सबसे हार्ड क्वेश्चन है, जिसका जवाब कोई नहीं दिया। अल्लाह करता क्या है? अल्लाह क्या करते? तुम अल्लाह को मानते हो ना? अल्लाह क्या करते? भाई मेरे को कोई पूछे ये मजमा क्या करता है, मैं कहूँगा सारा मजमा सुन रहा है। बोलो क्या कहेंगे? सारा मजमा। कोई मेरे बारे में पूछे आप क्या कर रहे हैं, मैं कहूँगा मैं बात कर रहा हूँ। और सबकी हैयत क्या है, मैं कहूँगा सब बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं देखूं तो मैं बताऊंगा कि ये क्या कर रहे हैं। हम में से किसने अल्लाह को देखा? अरे किसी ने अल्लाह को देखा? अच्छा ऐसा है कि कल देखेगा अल्लाह को? अच्छा ऐसा है कि 2-4 महीने के बाद देखेगा? कोई हमारी आंखों में अल्लाह ने ताकत ही नहीं दी। पूरा मजमा बोले हम अल्लाह को देख, वो कयामत में दीदार होगा, बोलो इंशाअल्लाह। बाकी दुनिया में अल्लाह ने किसी आंख में ताकत नहीं दी कि वो अल्लाह को देखे। अल्लाह ने खुद फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं कि वो अल्लाह को देख सके, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबको। आगे तीसरा सवाल है कि अल्लाह करते क्या है, क्योंकि देखोगे तो पता चलेगा ना अल्लाह करते क्या है, और आंखों में ताकत ही नहीं कि अल्लाह को देख सके। अब बताओ कितने सवालात हो गए? अरे साथ में बोलो ना, कितने सवालात हो गए? पूरा मजमा बोले ना, कितने सवालात हो गए? जिसमें सबसे पहला सवाल अल्लाह के ऊपर कौन, दूसरा सवाल अल्लाह देखते कहाँ, और तीसरा सवाल अल्लाह करते क्या है। मेरे प्यारो, फिर मैं पूछूंगा वो बच्चा कितने साल का? 18 साल का। जैसे अल्लाह ने इनको कुरान करीम की दौलत से माला माल किया है, कोई नाबीना है, कोई डेफ है, कोई डम है, कोई दिमाग से माजूर है, कोई हाथ से माजूर है, कोई पाँव से माजूर है, मगर अल्लाह कैसा कैसा इल्म देता है। ये 18 साल के बच्चे, बोलो नाम क्या है? नौमान। इन्होंने कहा मैं आपके तीनों सवालात के जवाब दूंगा, मगर अब मेरी भी एक कंडीशन है। तो बूढ़े मियाँ ने कहा व्हाट्स द कंडीशन? जो भी हो बता दो, हमको खुल के बता दो आपकी कंडीशन क्या है। कहा आपने सवाल पूछे, आप कहाँ बैठे हो? तख्त पर।
तख्त पर बादशाह के बाजू में शाही मेहमान तख्त पर बैठे हो और मैं अब जवाब देने वाला हूं। जब आप सवाल पूछ रहे थे आप तख्त पर और मैं एक भिखारी फकीर की तरह सामने खड़ा, अब मैं जवाब दूंगा। मैं तख्त पर आऊंगा, आप मेरे सामने आएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको अगर सवाल पूछने का हक है तख्त पर बैठकर, तो मुझे तो और भी हार्ड काम करना है, मुझे तो जवाब देना है ना, तो मैं तख्त पर आऊंगा। तो अच्छा, और किसी को स्टेज पर से उतारो, आसान काम है? अरे बरसों की दुश्मनी हो जावे। किसी को यूं कहे भाई स्टेज पर से नीचे जाओ, वो नीचे नहीं जाएगा, बाहर निकलेगा और क्या कहेगा, इंसल्ट इंसल्ट, मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला गया, मेरे को स्टेज से हटाया। और ये तो शाही मेहमान है और इनके साथ में स्टूडेंट्स कितने हैं, और 200 स्टूडेंट, कैसा बड़ा स्टेज बना हुआ होगा। तो बूढ़े मियाँ पहले थोड़े ऊपर नीचे होने लगे, तो उन्होंने क्या कहा मालूम, 18 साल के जवान ने, अगर आप मेरी बात मानते तो ठीक है, वरना मैं बादशाह को कहूंगा तुम्हारे भी टुकड़े टुकड़े कर दे। तो वो घबराए। बादशाह ने कहा सही है, वो जो बच्चा कहता है कर लो, क्योंकि इतनी हिम्मत करके वो बच्चा यहाँ पर आया है। अब वो धीरे 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 स्टेज से उतर के सामने आए और बताओ 18 साल का जवान कहाँ पर आ गए, बादशाह के बाजू में शाही कुर्सी पर आ गए और वो सारे 200 स्टूडेंट भी नीचे आ गए। अब इन्होंने क्या कहा मालूम, चलो जल्दी जल्दी मेरे सवाल के जवाब दे दो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी, मुझे स्टेज से उतरना पड़ा। 18 साल के जवान ने कहा इत्मीनान से, तुम्हारा पहला सवाल था, मेरे को सब मेरा साथ में जवाब देंगे। पहला सवाल क्या था? अल्लाह के, बोलो ना बोलो ना बोलो ना, अल्लाह के। 18 साल के जवान ने कहा आपका पहला सवाल, अल्लाह के ऊपर कौन है? आपको गिनती आती है? नंबर्स काउंटिंग आपको आता है? जाहिर बात, इतने बड़े लिखे को आप कहो कि आपको नंबर्स काउंटिंग आता है, तो ये और इंसल्ट वाला मामला है। जैसा हमारे यहाँ कोई बहुत एजुकेटेड, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हो और उसको मैं कहूँ चल सुना ABCD, तो गुस्से होगा कि नहीं होगा? तो वो बड़ा गुस्से हुआ कि ये क्या सवाल है कि मेरे को गिनती आती कि नहीं आती। कहा आप गिनना तो शुरू करो, आप लोग भी मेरे साथ में गिनोगे। चलो वो बूढ़े मियाँ ने गिनना शुरू कर दिया अपनी जबान में, हम अपनी जबान में। बोलो एक, आगे बोलते जाओ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे वो 10 पर पहुंचे, 18 साल के जवान ने कहा बस आपने बहुत अच्छा गिना 1 से 10 तक, अब आप इसको रिवर्स जाओ। रिवर्स चलेंगे? कौन कौन मेरे साथ में चलेगा? रिवर्स चलेंगे ना? चलेंगे। तो चलो अब साथ में शुरू करो। अब गिनना शुरू किया, बोलो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वो 1 पर रुक गए। तो 18 साल के जवान ने कहा 1 के ऊपर, तो गुस्से में कहा अरे हमने पहले से पढ़ा है 1 के ऊपर कुछ नहीं। तो कहा हमारा अल्लाह भी 1 है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं। बोलो बोलो नारे तकबीर। और वो 18 साल के जवान को अल्लाह ने जो आवाज दी होगी, इतने प्यार से कहा कि वो 18 साल के जवान ने, 18 साल के जवान नौमान ने जवाब दिया, अगर आपकी गिनती पर बल्कि पूरी दुनिया की गिनती पर 1 के ऊपर कुछ नहीं, 1 के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह कहता है कि वो भी 1 है और उसके ऊपर भी कोई नहीं। हमारे अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो ना, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। पूरा मजमा बोलेगा हमारा अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? हमारा अल्लाह। और जब गिनती में 1 के ऊपर कोई नहीं, तो हमारा अल्लाह भी 1 है। बोलो अल्लाह पर, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं। जैसे आपने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर कहा ना, वो मजमे में भी ऐसा ही हुआ। तो बूढ़े मियाँ ने कहा चलो एक जवाब तो दे दिया, दूसरा जवाब दो ना। क्या सवाल था? अल्लाह देखते कहाँ है, आगे या पीछे, राइट या लेफ्ट, अप या डाउन, फ्रंट या बैक? अल्लाह देखते कहाँ है?
मालूम 18 साल के जवान खड़े हुए और खड़े होकर कहा मुझे परमिशन दो बादशाह कि जितनी लाइट है ना सब लाइट ऑफ कर दी जाए। उस जमाने में बड़े बड़े कुमकुमे होते थे, बड़े बड़े चिराग लगे रहते थे। हाँ, उस जमाने में ऐसा फोकस वगैरह नहीं होता, मगर जो भी लाइटिंग थी कहा मुझे इजाजत दो कि सब बंद कर दिया जाए। सब बंद कर दिया, बिल्कुल अंधेरा पूरे मैदान में, ऐसा किसी को अपना हाथ भी नजर ना आए। तो बूढ़े मियाँ जो सामने खड़े थे कहा क्या करना चाहते हो? कहा एक काम करो, मुझे कैंडल चाहिए, एक मोमबत्ती। उस जमाने में बड़ी बड़ी मोमबत्ती होती थी, आज भी बड़ी बड़ी मोमबत्ती होती, कैंडल होती। कैंडल तो समझते हो ना, कहा मुझे एक मोमबत्ती चाहिए, बस उसको बिल्कुल मैदान के बीच में रख दिया जाए। अभी बिल्कुल अंधेरा है, किसी को किसी का हाथ नजर नहीं आता, उसको बीच में रख दिया जाए। चुनांचे उसको बीच में रखा गया। 18 साल के जवान ने बूढ़े को कहा तुम भी आओ, बादशाह को कहा आप भी आओ, और भी कुछ लोग आओ। देखो ये दो, उस जमाने में 2 आने की मोमबत्ती होगी, कहा ये 2 आने की मोमबत्ती मैंने जला दिया। अब मुझे बताओ इसकी रोशनी, ये 2 आने की मोमबत्ती है, मामूली मोमबत्ती है, लेकिन इसका उजाला कहां जाता है? अगर ये मोमबत्ती जल रही है तो हमको राइट की जमीन बोलो नजर आती है, लेफ्ट की जमीन नजर आती है, आगे वाली जमीन नजर आती है, पीछे वाली जमीन नजर आती है। ये मोमबत्ती में हम ऊपर भी देख सकते हैं, ये मोमबत्ती की रोशनी में हम नीचे भी देख सकते हैं। तो बूढ़े मियां ने कहा इसमें कौन से बड़े कमाल की बात है भाई, अंधेरा कर दोगे और एक मोमबत्ती लाके रखोगे, कैंडल लाके रखोगे तो उसका उजाला तो चारों तरफ बल्कि ऊपर नीचे 6 तरफ उसका उजाला जाएगा। और 11 साल के जवान नौमान ने कहा लाइट ओपन करो। फिर आए अपनी कुर्सी पर बैठे और कहा जब 2 आने की मोमबत्ती का उजाला सब सिमत में जाता है तो मेरा अल्लाह तो नूर ही नूर है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना, हमारा अल्लाह खुद कुरान पाक में फरमाता अल्लाह नूर ही नूर है। अगर जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिशकातिन फीहा मिसबाह। और आखिर में अल्लाह ने क्या फरमाया, जिसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा अल्लाह की जात ऐसी नूर वाली जात, ऐसी नूर वाली जात कि सिर्फ अल्लाह के सामने 70,000 नूर के पर्दे हैं और हर पर्दा 7 आसमान और जमीन के बराबर है। तो सोचो अल्लाह के नूर का आलम क्या होगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया नूरुन अला नूर। पढ़ो नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। कितने सवालों के जवाब हो गए? वो बूढ़े मियाँ बहुत खुश थे कि तीसरा वाला क्वेश्चन बहुत हार्ड है। क्या अल्लाह करते क्या है? करते क्या है वो तो नजर आवे तो ही मालूम होवे ना अल्लाह करते क्या है। भाई कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई खाता है, कोई पीता है, देखे तो नजर आवे। अल्लाह तो नजर आते नहीं है और नजर आने वाले भी। इसलिए उसने बड़े बूढ़े मियाँ ने बड़े जोर से कहा चलो ठीक है, 2 सवाल के जवाब हो गए, तीसरा जवाब दो अल्लाह। आवाज नहीं आ रही, अल्लाह। 18 साल के जवान ने कहा इससे आसान सवाल और जवाब कौन होगा? अल्लाह करते क्या है? तुम ये पूछ रहे हो ना अल्लाह करते क्या है? अल्लाह शाही मेहमान को बुलाते हैं, शाही दस्तरखान बिछाया जाता है, एक बादशाह का मेहमान आते हैं, बादशाह का दस्तरखान होता है, बादशाह का महल होता है, बादशाह का स्टेज होता है। अल्लाह करते क्या है? अल्लाह उसको भिखारी की तरह सामने खड़ा करते हैं और जो बेचारा भिखारी की तरह था उसे बादशाह की कुर्सी पर बिठा देते हैं। वही अल्लाह है, वही अल्लाह है जिन्होंने मुझे यहाँ बिठाया। वो 18 साल के जवान कहते मालूम नहीं, मैं 2 वक्त से खाना नहीं खाया, मेरे कपड़े फटे हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि 18 साल का जवान आ जाकर कुर्सी पर बैठेगा, और कोई ये नहीं सोच सकता था कि शाही मेहमान को कोई सामने खड़ा करेगा। 18 साल के जवान ने कहा सब सुभान अल्लाह कह दो, सुभान अल्लाह। कहा ये मेरे अल्लाह ने बहुत पहले कुरान में कह दिया, सब पढ़ेंगे, याद हो मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं जिसको चाहूंगा इज्जत दूंगा और जिसको चाहूंगा बोलो 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 जलील करूंगा।
جس کو چاہوں گا امیر بنا دوں گا، جس کو چاہوں گا فقیر بنا دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں یہ میری حکومت ہے، اس میں کوئی انوالو نہیں ہو سکتا۔ اگر میں نے کسی کی عزت کا فیصلہ کیا، لاکھ کوشش کرے، بولو اس کو ذلیل، اور اگر اللہ ذلیل کرنے پر آئے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ وہ اللہ ہے جو امیر بنائے، جو اللہ ہے وہ فقیر بنائے۔ میرے دوستو یہاں تک میں نے کتاب میں پڑھا، اس کے آگے کیا ہوا، وہ بادشاہ ہارون رشید نے کیا کیا، مجمع نے کیا کیا، وہ کچھ کتابوں میں لکھا نہیں، اس لیے یہیں پر میں اپنی بات کو روکوں گا۔ لیکن یہ کہوں گا میرے پیارو، وہ 18 سال کے جوان جن کا نام کیا تھا، وہی آگے بڑھے، آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ آج انہی کو ہم یاد کرتے ہیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے۔ جہاں ہمارے یہاں پہ 4 امام مشہور ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ۔ جہاں اولیاء کرام کی جماعت کا ذکر آتا ہے، وہاں 4 اماموں کا ذکر آتا ہے۔ اس میں سب سے بڑے امام امام اعظم امام ابو حنیفہ، یہ وہی 18 سال کے جوان۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے پیارو، ان کی نظر کس پر تھی؟ ہماری نظر، ہمارے 18 سال کا جوان ہوگا نا یہاں پہ، بلکہ میں کہتا ہوں کائے کو 18 سال کے جوان پر جائے، یہ بچوں کی عمر پوچھ لو، یہ جو بچے جو آنکھ سے معذور، کان سے معذور، یہ زبان سے معذور، ان کی عمر پوچھ لو، اور ہماری عمر دیکھو، اللہ تو نے 2 آنکھیں دی ہے نا۔ یہ بچوں کی نظر قرآن پر، ہم آنکھوں والوں کی نظر موبائل پر۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ ہمارے جوانوں کو دیکھو پوری رات موبائل 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 موبائل۔ ہاں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر کسی کو عادت ہے موبائل یہاں رکھنے کا، یعنی رائٹ پاکٹ میں موبائل رکھنا، ایک عادت ہے، اس کو عادت ہے، کسی دن بھول میں اس نے موبائل کہاں رکھ دیا، بولو کہاں رکھ دیا، لیفٹ پاکٹ میں رکھ دیا، ہو گیا، ہوتا ہے، بھول ہوتی ہے، ہو گئی اس سے بھول۔ 15 منٹ کے بعد اس کو موبائل یاد آیا، تو چونکہ عادت تھی رائٹ پاکٹ میں رکھنے کا، اس نے فوراً اپنا ہاتھ رائٹ پاکٹ میں ڈالا اور موبائل ملا، وہ 2-3 سیکنڈ دکھنا، اور پھر جب اس کو ملے گا ٹھنڈک ہو گئی۔ یہ 2-3 سیکنڈ جو تڑپا ہے، کیا کبھی نبی کی محبت کے واسطے اتنا تڑپا ہے؟ کیا کبھی اپنی ماں کی بیماری پر اتنا تڑپا ہے؟ کیا کبھی اپنے ابا کے بیمار ہونے پر اور سر دکھنے پر اتنا تڑپا ہے؟ کیا طریقہ؟ اور پھر میرے دوستوں ہم ایک ہی گانا گاتے ہیں، حالات 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 بہت خطرناک۔ میرے پیارو، ہمارے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزیں تیرے ہاتھ میں ہوگی، دنیا بھی تیرے قدموں میں، جنت بھی تیرے قدموں میں، جس میں نمبر 1 کیا ہے؟ قرآن۔ لیکن ہم کو قرآن سے محبت ہے۔ ایک سوال پوچھوں جو میں نے ابھی احمد آباد میں پوچھا تھا، میں بہت تھک کر آیا ہوں، کیونکہ میں کلکتہ سے احمد آباد سے حیدرآباد، اور حیدرآباد سے پھر یہاں بروڈا، اور اتنی مرتبہ منع کیا بروڈا آنے کو، مگر یہ ہمارا ہدایت کہاں بیٹھا ہے، دیکھو کیسا آرام سے کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تیرے کو تو اچھا ہے، ہاں مفتی عمران، ابھی بیان ہو جائے گا، یہ چلا کہاں، یہ سب چلے، اور میں مارا 3-4 گھنٹے کے بعد اپنی بیوی کے پاس پہنچوں گا، وہ بھی بہت اکھڑتی رہتی ہے، کہتی یہ کیا ہے، کلکتہ گئے پھر واپس سورت آئے، ملے نہیں ملے، اور اس کے بعد میں پھر احمد آباد چلے گئے، پھر احمد آباد سے پھر حیدرآباد چلے گئے، پھر بروڈا۔ آج جب میں نے فون کیا دوپہر میں تو مجھے کہا اچھا ٹھیک ہے نا، آپ کی حیدرآباد کی فلائٹ سورت اتر جائے گی۔ میں نے کہا سورت کی فلائٹ میں نہیں بیٹھا ہوں، بروڈا کی فلائٹ میں بیٹھا ہوں۔ اور بیوی جو ہے نا وہ کہاں گیا، ہمارا بیٹا ایان کا ہے، آؤ میدان میں آ جاؤ بھائی، بڑا ہم بھی ایسے ہی میدان میں ہیں۔ وہ معلوم ہے نا، مفتی عمران صاحب ایک بہت پتے کی بات سناؤں، اتنی پتے کی بات سناؤں۔ ایک بچی کا نام تھا مدینہ، کیا نام تھا؟ مدینہ۔ اب ابا نے شادی کروائی، ابا نے شادی کروائی، شادی ہو گئی، 3-4 مہینے ہو گئے۔ اب یہ ابا جو ہے نا اپنے داماد کو، یعنی سسور اپنے جوائی کو ملنے کے لے گئے 3-4 مہینے کے بعد، اور اپنے جوائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا، او میرا بیٹا میرا داماد میرا جوائی، میں نے بیٹی دی تم کو، بیٹی مدینہ نام کی بیٹی دی ہے، 3-4 مہینے ہو گئے، میری بیٹی کیسی رہتی ہے؟
मदीना है। जवाई ने कहा नाम मदीना है मगर करबला है। मैं मेरी बीवी को तो सुना नहीं सकता, आपको तो सुना सकता हूं, लेकिन सच बताओ मेरे प्यारों, आज एक काम के लिए तैयार हो जाओ। मैं फिर बताऊंगा, हमारे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। नहीं साथ में बोलो ना, कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं? 2। नंबर 1, नहीं साथ में बोलो ना, नंबर 1 कुरान, और नंबर 2 हमारे प्यारे नबी ने फरमाया सुन्नत नबीकुम, तुम्हारे नबी का तरीका छोड़ के जाता हूँ। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज़ को थाम लेना मेरा उम्मती, दुनिया भी तेरी होगी आखिरत भी तेरी होगी। 2 चीज़ को थाम लेना, बोलो नंबर 1 कुरान और नंबर 2 प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। अरे मेरे प्यारो, ये पूरा मजमा बोलो हमारे नबी को हमसे मोहब्बत के नहीं, नहीं बोलो ना, हमसे मोहब्बत के नहीं। इतना मेरे को बताओ, कयामत आएगी? आवाज नहीं आ रही, कयामत आएगी? पढ़ो ना मेरे साथ में, पढ़ो ना। अल्लाह ने फरमाया अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराका मल क़ारिअ यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबथूथ व तकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश। पूरा मजमा साथ में बोले कयामत। नहीं बोलो ना कयामत। मालूम कयामत में एक मंजर कैसा होगा, बड़े बड़े मिंबर लाए जाएंगे और ऐसे चमकते दमकते मोतियों के, डायमंड के, जबरदस्त के मिंबर लाए जाएंगे और ऐलान होगा कि सारे नबी जमा हो जाए और हर मिंबर पर पीछे नबी का नाम लिखा होगा और अल्लाह का ऐलान होगा या आदम इरफा अलल मिंबर, आदम आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका मिंबर लग चुका है। हजरत आदम मिंबर पर बैठेंगे, फिर उसके बाद 1,24,000 कम ज्यादा नबियों के मिंबर लगे होंगे और अल्लाह की तरफ से ऐलान होता जाएगा आदम इरफा अलल मिंबर, या नूह इरफा अलल मिंबर, या यूसुफ इरफा अलल मिंबर, या याकूब इरफा अलल मिंबर, या इसहाक इरफा अलल मिंबर। अल्लाह नबियों के नाम लेते जाएंगे और नबी आते जाएंगे। किस पर बैठते जाएंगे? जब सारे नबी बैठेंगे तो अल्लाह फरमाएंगे ये जितने मिंबर है वो एक तरफ, अब जो मिंबर लाया जा रहा है कोई मिंबर उस मिंबर का मुकाबला नहीं कर सकता, बोलो सुभान। और वो जो मिंबर आएगा फरिश्तों के हाथ में होगा और मिंबर लाया जाएगा, सारे के सारे अंबिया जो अब तक मिंबर पर बैठे थे खड़े हो जाएंगे, सिर्फ मिंबर को देखने के लिए खड़े हो जाएंगे और अल्लाह फरमाएंगे ये मेरे आखिरी नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा का मिंबर है और अल्लाह ऐलान फरमाएंगे या अहमद। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में कौन से नाम से याद किया जाता था? मोहम्मद। और आसमान पर कौन से नाम से याद किया जाता है? अहमद। तो अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा या अहमद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरफा अलल मिंबर। अब आपका मिंबर भी आ गया है, ये मिंबरों का सरदार है, आप भी आ जाए ना, मिंबर पर आ जाए। मेरे प्यारो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो एंट्री होगी, कसम अल्लाह की बताओ ऐसी कोई एंट्री देख पाएगा जो वो एंट्री होगी? वो हमारे नबी का आना और सारे अंबिया का खड़ा होना, सारी उम्मतों का खड़ा होना, सारी कौमों का खड़ा होना और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एंटर होना और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में झंडा होगा जिसको लिवाउल हम्द कहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जन्नत का ताज होगा और हमारे नबी का चेहरा चमकता दमकता हमारे नबी जैसे आएंगे, अल्लाह फरमाएंगे या अहमद इरफा अलल मिंबर, मिंबर तैयार है, बैठ जाए। हमारे नबी बैठेंगे, बोलो क्या कहेंगे मालूम? अल्लाह मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाते मेरी कसम बैठ जाओ, सारे मिंबरों को जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा, बोलो सुभान अल्लाह। और वो भी सबसे आला अरफा, सबसे ऊंची वाली जन्नत में पहुंचाया जाएगा। और आपका अल्लाह क्या फरमाते हैं? आपका मिंबर अल्लाह कहते हैं मकाम में महमूद पर लाया जाएगा जो मेरे अर्श के सामने है। आप मुझे देखते रहोगे, मैं आपको देखता रहूंगा, बोलो सुभान अल्लाह। कहां पर पहुंचाया जाएगा आपका मिंबर? आसा मिंबर पर बैठ जाओ, सारे नबियों का मिंबर जन्नत में जाएगा, मेरे मुस्तफा आपका मिंबर
बुलाता रहूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, हमारे नबी नहीं बैठेंगे। बोलो, दिल को हिला देने वाली बात है। ये मिंबर का जो ये दस्ता होता है ना, हैंड, उसके ऊपर हमारे नबी का ऐसा मुबारक हाथ होगा। अल्लाह कहेंगे अहमद इरफा अलल मिंबर, बैठ जाओ ना, मिंबर पर बैठ जाओ। सारे नबी इंतजार कर रहे, आप बैठेंगे और ये कार्रवाई शुरू होगी। हमारे नबी फरमाते नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं बैठूंगा सारे मिंबर जन्नत में चले जाएंगे, तो ये मेरी उम्मत जो खड़ी है उनका क्या होगा? अल्लाह मेरी उम्मत खड़ी है उनका क्या होगा? मेरी उम्मत तड़प रही है अल्लाह, मेरी उम्मत पसीने में अल्लाह, मेरी उम्मत ने मालूम नहीं कितनी देर से पानी नहीं पिया है, मेरी उम्मत ने खाना नहीं खाया है अल्लाह, कयामत का झटका लगा हुआ है। कल मैं मिंबर पर बैठ गया, चलो हम जन्नत में चले गए, और मेरा मिंबर तो अल्लाह तेरे अर्श के सामने आएगा, लेकिन मेरी उम्मत का क्या होगा? ए पूरा बरोड़ा वाले सुनना। अल्लाह फरमाते मेरे मुस्तफा क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? हाँ मेरी उम्मत को चाहता हूँ। अल्लाह फरमाते बस अब मैंने भी फैसला कर लिया, मैं अपनी रजामंदी नहीं देखूंगा, तुम जब तक राजी नहीं होंगे इशारा करते जाना, मैं तुम्हारे उम्मती को जन्नत में भेजता चला जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ यु'तीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाते मेरा मुस्तफा तुम इशारा करते जाओगे, मैं अता करता जाऊंगा, तुम इशारा करते जाओगे, मैं बख्शिश करता जाऊंगा। और अरबी जानने वाले समझते होंगे यहाँ अल्लाह फरमाते फतरदा, ये नहीं कहा फअरदा, यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं राजी हो जाऊंगा, नहीं मेरा मुस्तफा मामला तुम्हारे हवाले है, जब तक तुम राजी नहीं होंगे वहां तक तुम्हारे उम्मती को जन्नत में पहुंचाता रहूंगा। ये हदीस सुन लिया आपने? अरे हाँ बोलो सुनी। हमारे नबी मिंबर पर बैठे नहीं, सहाबाए किराम ने जब ये हदीस सुनी तो रोते रोते कहा अल्लाह के रसूल हमारी तरफ इशारा करोगे, क्योंकि कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। हाँ कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि जो प्रेग्नेंट औरत होगी ना उसका बच्चा भी गिर गया होगा। अरे बोलो उसका बच्चा भी गिर गया होगा। दूध पिलाने वाली माँ बोलो अपने दूध पीते बच्चे को दूर छोड़ देगी। अल्लाह ने फरमाया यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अरज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। अल्लाह फरमाते कयामत का झटका ऐसा झटका होगा, हर दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ देगी और हर हमल वाली औरत अपना हमल गिरा देगी। लोग अजीब व गरीब नशे के आलम में होंगे, वो खौफ का नशा होगा, वो डर का नशा होगा। तो सहाबा किराम ने पूछा अल्लाह के रसूल ये जो मिंबर वाला मामला है तो आप जिसकी तरफ इशारा करोगे तो आप हमको पहचानोगे अल्लाह के रसूल? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम्हारी बात नहीं है, जो मेरे तरीके पर अमल करता होगा मेरी उंगली मुबारक उसकी तरफ जाएगी, और उंगली मुबारक जाने में देर होगी, उसके जन्नती होने में देर नहीं होगी। बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है हमारे नबी के तरीके पर अमल करने के लिए? सब तैयार है, क्योंकि दो चीजें हमारे नबी छोड़ कर गए। नंबर एक, अरे बोलो ना, नंबर एक, और नंबर दो मुस्तफ़ा के तरीका। मुस्तफ़ा के तरीके में उलमा ने सोचा और उलमा ने माशाल्लाह बहस व मुबाहसा किया कि मुस्तफ़ा का तरीका किया, इसी नतीजे पर आए हैं कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे और आकर कहा था मेरे नबी आपको बहुत सारे लोग हदिया देते हैं, प्रेजेंट देते। भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी बहरीन से हदिया आ रहा है, कभी मुल्क शाम से हदिया आ रहा है, कभी चलो कोई साहबी शहद लेकर आ रहे, कोई दूध लेकर आ रहे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यतीम थे ना, कहने लगे अल्लाह के रसूल सारे लोग आपको हदिया देते हैं, मैं कौन सा हदिया दूं कि जिससे आप राजी हो जाए? हमारे नबी ने फरमाया अनस तुम्हारी बात नहीं, क़यामत तक आने वाले को बता दो मेरा सबसे बड़ा हदिया ये होगा और मेरी आंखों की ठंडक होगी, मेरी उम्मत की 5 वक्त की
जुइलत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, वो नाबीना छोटा बच्चा भी बोल कर गया कि मेरे नबी की आंखों, उसने बेचारे ने इशारा किया, मेरे नबी की आंखों की ठंडक कितनी नमाजों में है। पढ़ी फजर पढ़ी, जिसने पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो मोबाइल की दुनिया में एपिसोड, गुटखा, विमल, एमडी, ड्रग्स, कफ सिरप, क्या जिंदगी बना के रखा मेरे प्यारो। आज इरादा करो, आज इरादा करो, आज यहाँ से खाली नहीं जाओगे। अरे बोलो खाली नहीं जाओगे, दो दौलत लेकर जाओगे। आज से हमारे घर में कुरान पढ़ा जाएगा, बोलो इंशाअल्लाह। और कुछ नहीं, मैं तो सबको समझाता हूँ, अल्लाह ने 24 घंटे की रोजाना की जिंदगी, एवरी डे कितना 24 आवर्स, ओनली वी हैव टू गिव 2 आवर्स। 2 घंटे अल्लाह को देना है। अल्लाह ने कहा 22 आवर्स ये तेरे, 2 आवर्स मेरे। कैसे? मैं कहता हूँ आधा घंटा कुरान पढ़ ले। अरे बोलो अपने कारोबार पे जाने से पहले कितनी देर? हाफ एन आवर। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ईशा के साथ वितर वाजिब को भी जोड़ दो। अगर आप ये 5 नमाजों का सर्वे करो अपने अपने वक्त पर और टाइम का उसका कैलकुलेट करो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा। तो आधा घंटा कुरान और 1.5 घंटा नमाज। हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूँ, एक कुरान और एक नमाज। अगर कुरान आधा घंटा और नमाज 1.5 घंटा, दुनिया भी तेरी होगी, आखिरत भी तेरी होगी, बोलो सुभान अल्लाह। तो 24 आवर्स में से ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हमको कितने घंटे देना है? कौन बड़ौदा वाला तैयार है? वडोदरा वाला कौन तैयार है? 2 घंटे देंगे, देंगे बोलो देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह की कसम खाकर बोलो, कुरान से बढ़कर कोई कलाम। मैंने अभी अहमदाबाद में एक सवाल पूछा था, पूछो आपसे पूछो। ये मजमा हम बैठे, कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहता है? 2 हाथ ऊपर करो। मैंने कोई मामूली सवाल नहीं पूछा, कौन हमारे नबी को। अच्छा, और मुबारक है यहाँ बैठे होंगे ऐसे उलमाए किराम जिन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। और सच बताओ, हदीस पाक में लिखा, जिसने ख्वाब में नबी को देखा उसने नबी ही को देखा। बोलो, जिसने ख्वाब में नबी को देखा उसने नबी ही को देखा। शैतान सबकी सूरतें बनाकर ख्वाब में आ सकता, लेकिन अल्लाह ने हमारे नबी की सूरत बनाना उसके ऊपर हराम कर दिया है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी सर मुबारक से लेकर पाँव मुबारक तक हिदायत हिदायत है, और शैतान सर से लेकर पांव तक ज़लालत ज़लालत है। और हिदायत और ज़लालत दोनों जमा नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे नबी ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआनी फकअन्नमा रआनी ला यतमस्सलु शैतानु बी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ख्वाब में मुझे देखा, दुआ करो अल्लाह सबको दिखाए, बोलो आमीन। हमारे नबी क्या फरमाते? जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। शैतान सबकी सूरत बनाकर ख्वाब में आ सकता, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की सूरत बनाकर। अब बताओ किस किस को देखना है? देखना है? हाँ बोलो ना, मैंने बुलंद आवाज से बोलो ना। आज मैं एक चीज बता रहा हूं, देखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो देखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ भी ऐसे उलमाए रब्बानीयीन बैठे होंगे जिन्होंने ख्वाब में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। ये उलमाए किराम की बात है, ये फुज़ला इज़ाम की बात है। बाकी आपको एक बात बताऊँ, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे जिनका नाम था शेख अब्दुल हक। बोलो क्या नाम था? आवाज से बोलो ना, बात खत्म कर रहा हूँ, बोलो ना क्या नाम था? शेख अब्दुल। हाँ, वो बैयत हुए, किनके हाथ पर बैयत हुए? असर का वक्त था, असर की नमाज के बाद बगदाद की जामा मस्जिद में वो बैयत हो रहे हैं। उनके शेख कौन है? उनके पीरे तरीक़त कौन है? आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी, बोलो सुबहान अल्लाह, शेख अब्दुल कादिर। अच्छा, उनके हाथ पर बैयत हो गए। और आपको मालूम है, जब भी कोई शेख कोई पीर अपने मुरीद को अपने हाथ पर बैयत करते, उसके बाद बताते हैं कि बेटा देखो, तुम मेरे हाथ पर बैयत हुए हो, तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना है, तुम्हें हमारे मुस्तफ़ा से बहुत मोहब्बत करना है। और फिर बताते ये पढ़ना है और ये करना है और ये नहीं करना है। बाकायदा कभी कभी बड़े बड़े कार्ड तकसीम किए जाते हैं कि भाई ये सब चीजें तुमको अपने मामूलात में रखना होगा। और वो मुरीद इकरार करता है कि हाँ हजरत मैं सब करूंगा। और फिर हजरत ये भी कहते हैं, अगर इसमें से कुछ कमी हो तो हमको
इन्फॉर्म करना ताकि हमें समझ में आए आगे आपका इलाज कैसा करना। लेकिन आजकल के मुरीदीन मौना फिरदौस खाली शेख के साथ खाना समझते, और बेचारा शेख तो धीरे धीरे खाता होगा, मुरीद तो ऐसा खाता। अभी हमारे किनके घर पे बैठे थे हम लोग, मुफ्ती इमरान साहब अयाज भाई के घर पर खाने बैठे थे। मैं बराबर नजर घुमा रहा था, ऐसा लगता था आस्तीन चढ़ा के इतने बड़े बड़े लुक में धड़ाधड़। मैंने कहा नाम कारी अहमद अली का, मुफ्ती नाम कारी अहमद अली का, और काम किस किस का हो रहा है यहाँ पर। इस पर नारे तकबीर किया, ये तो मेरे बारे में हो गया भाई। अभी मैं निकाह के मजमून पे आऊं ना, तब नारे तकबीर बोलना, क्योंकि आयान बेटे को अब नारे तकबीर करते ही रहना इंशाअल्लाह। तुम्हें किनका नाम लिया? शेख अब्दुल हक। किनके हाथ पर बैयत हो गए? पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, अल्लाह के वली पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। अभी वक्त नहीं कि उनके हालात को बताओ, लेकिन आपने सुना होगा क्या उनके हालात और क्या उनके मनाकिब और क्या उनकी आजमत और क्या उनकी रिफत। अच्छा, ये बैत हो गए, बैत होकर अपने घर पर गए, रात को ईशा की नमाज पढ़कर सोए होंगे। तो ये शेख अब्दुल हक जो बैत होकर गए थे, जो मुरीद थे, उन्होंने ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, और हमारे नबी ने फरमाया बहुत अच्छा हुआ, अब्दुल कादिर के हाथ पर बैत हो गए, बहुत अच्छा हुआ। बस ये जैसे उठे ना सुबह में, सीधे फजर की नमाज बगदाद की जामा मस्जिद में, और नमाज के बाद फौरन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत मैं बहुत मुबारक हो गया, मैं बहुत प्यारा हो गया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया कल तो शाम को बैत हुए असर के वक्त में और फजर के वक्त में मुबारक हो गए। कहा रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मेरे दोस्तों, बड़ों की बात बड़ी होती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया उसमें कौन सा कमाल किया, उसमें कौन सा कमाल? कहा अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा। फरमाया कौन सा कमाल किया? सोते हुए आंखें बंद थी, ख्वाब में नबी को देखा। अरे देखो सामने देखो, हमारे नबी जा रहे हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और सबने उस वक्त देखा, फरमाते हमारे नबी को गुजरते हुए हमने देखा, सोते हुए देखा तो क्या देखा? अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों को पूछ, वो मोहब्बत है कि जागते हुए भी देख रहे, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं, हम अपने कैटेगरी पे आ जावे, हम सबको प्यारे नबी को देखना है? अरे बोलो ना, देखना है। क्योंकि बात खत्म करने से पहले ये बात बता दो, एक सहाबी ने हमारी माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था। एक सहाबी ने हमारी माँ हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि हमारे नबी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह की रहमत में पहुंच गए, अलविदा मुबारक हो गया। आप ये बताओ कि मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, मेरे नबी का किरदार कैसा था, मेरे नबी का उठना बैठना मुबारक कैसा था। वो सहाबी किनको पूछ रहे? बोलो साथ में बोलो, किनको पूछ रहे? हजरत आयशा को। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने क्या जवाब दिया? कितना प्यारा जवाब दिया, सुन लो मेरे बरोड़ा वालों, इतना प्यारा जवाब दिया। हजरत आयशा ने फरमाया मैं कहां तक बताऊं कि नबी के अखलाक, नबी के किरदार, नबी का उठना बैठना बोलना खामोश रहना, कहां तक बताऊं? हजरत आयशा ने फरमाया एक जुमला ले लो, कयामत तक पहुंचा देना, किसी को मेरे नबी को देखना हो, खुलुकुहु अल कुरान, खुलुकुहु अल कुरान। यानी हजरत आयशा ने फरमाया सुनो, जिसने कुरान को मोहब्बत से देखा, कुरान को मोहब्बत से पढ़ा, सुनो जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा उसने कुरान को देखा। कौन कौन तैयार है भाई? कुरान को भी मोहब्बत से देख लो, कौन नजर आएंगे? मुस्तफा को देखो, कुरान नजर आएगा। इसीलिए किसी ने कितने प्यारे अंदाज में कहा, इतने प्यारे अंदाज में कहा, अगर कोई अल्लाह से पूछे कुरान क्या है, मुस्तफा कौन है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुरान को मैंने 30 पारों में बंद कर दिया और मुस्तफा को हजरत आयशा के कमरे में मौजूद कर दिया। सुभान अल्लाह, वो एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाह ने फरमाया मैंने कुरान को आला बनाया, मुस्तफा को भी आला बनाया, मैंने कुरान को बाला बनाया, मुस्तफा को भी बाला बनाया, मैंने कुरान को निराला बनाया, मुस्तफा को भी निराला बनाया, मैंने कुरान को हसीन बनाया, मुस्तफा को भी हसीन बनाया, कुरान को मैंने 30 पारों वाला बनाया, मुस्तफा को वद्दुहा चेहरे वाला बनाया, कुरान को अगर मैंने वाज बनाया, मुस्तफा को वाइज बनाया, कुरान को
मुस्तफ़ा को पढ़ा वो सहाबी बन गया। तो आज मुस्तफ़ा का दामन सही में थामना है। कितने काम करना है? नंबर 1, नंबर 2, 5 वक्त की। कौन कौन तैयार है भाई? माशाल्लाह तैयार है। और एक बात और कह दूं, अभी निकाह होने वाले हैं। अल्लाह हमारे बेटे आयान में और बुशरा में खूब मोहब्बत अता फरमाए। लेकिन इतनी बात बता दूं कि ये जो निकाह भी होंगे ना, ये भी इबादत है। अब बोलो निकाह भी, वो अलग बात है कि हमने निकाह को फुजूल खर्ची का सामान बनाया। हाँ, निकाह में हमारे यहाँ मंडप, वीडियो शूटिंग और दूल्हे का जूता छुपाने का, फिर उसके बाद में लंबा, और पैसा ना हो तो कर्जा लेने का। और कितनी जगह तो मालूम है, वो हमारे यहाँ भी कुछ जहेज का रिवाज खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टाइल बदल गई है। पूछेंगे ना कि ये घर में पलंग किसने दिया? लड़की वालों ने दिया। कबाड़ किसने दिया? लड़की वालों ने। वो फर्नीचर किसने दिया? लड़की। तो तुमने जहेज लिया? ना, हमने मांगा नहीं था, वो खुद देके चले गए। मैं क्या कहता हूँ मालूम? एक भिखारी होता है, भिखारी जो प्याला लेके जाता है, 10 रुपया दे दे, 5 रुपया दे दे। ये भिखारी है। एक पौश भिखारी होता है जो इस तरीके से जहेज का सामान घर में लेकर आता है। अल्लाह इस भिखारी पने से हमारी हिफाजत फरमाए। निकाह आसान, बोलो निकाह आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। और मेरे प्यारों, इतनी बड़ी इबादत है, पूरा मजमा बोलेगा निकाह इतनी बड़ी इबादत है। हाँ मेरी माँ बहनें सब लोग सुने, कायनात में सबसे पहली इबादत कौन सी आई? क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ थे? जन्नत में। और अल्लाह ने फरमाया निकाह होने वाले। उस वक्त हजरत आदम के पास नमाजें थी? अरे बोलो नमाज थी, ज़कात, हज, उम्रा, कुछ नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में, हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बाई पसली से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया निकाह मैं खुद पढ़ाऊंगा। सबसे पहली इबादत अगर कायनात में आती है, बोलो कौन सी इबादत है? निकाह। और निकाह पढ़ाने वाले कौन? अल्लाह। और मालूम है जब अल्लाह ने निकाह पढ़ाए ना, तो हजरत आदम जाने लगे। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? कहा हव्वा के पास जा रहा हूँ, अब तो निकाह हो गए, हलाल है, मैं जा रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया मेहर दे दो, मेहर दे दो। हजरत आदम हैरान, क्या मेहर देंगे? भाई जन्नत में है ना, और हजरत हव्वा कहाँ है? जब दोनों जन्नत में, तो मेहर क्या देंगे? हजरत आदम अगर कहेंगे ये एरिया हव्वा मैंने तुझे दे दिया मेहर में, तो हजरत हव्वा कहेगी वो डबल एरिया मैंने तुम्हें दे दिया। दोनों के पास सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टी है, तो कैसे देंगे? तो हजरत आदम ने कहा अल्लाह क्या मेहर देने का, यहाँ तो जो मेरे पास है वो हव्वा के पास है। अल्लाह ने फरमाया मेरे आखिरी मुस्तफ़ा आने वाले हैं, मेरे आखिरी मुस्तफ़ा आने वाले हैं, उन पर 20 मरतबा दरूद पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो अव्वल इबादत बोलो क्या है कायनात की, जो अभी होने वाला है, क्या है? निकाह। और आखिरी इबादत क्या है? निकाह। हम जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ ऊपर करो, जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे जाएंगे। ये मोबाइल का लफड़ा छोड़ दो, जाएंगे इंशाअल्लाह, जाएंगे ना जन्नत में, जाएंगे ना इंशाअल्लाह। अच्छा जन्नत में जाएंगे तो हाँ अल्लाह कहेंगे फजर की नमाज पढ़, कहेंगे? अल्लाह कहेंगे ज़कात दे? नहीं, लेकिन ये होगा हम अपने पलंग पर लेटे होंगे। पलंग समझते हो ना, बेड, मसेरी। वो कैसी मसेरी होगी, कैसा पलंग होगा, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन हम जब अपने मसेरियों पर लेटे होंगे ना, उस वक्त अल्लाह की आवाज़ आएगी तेरा निकाह होने वाला है। बोलो सुभान अल्लाह। बहुत जोर से मत बोलना, बीवी सुनती होगी। अल्लाह की आवाज़ आएगी तेरा निकाह होने वाला है। तो निकाह होने वाला है तो आदमी क्या करेगा? मसेरी पर लेटा है, फौरन बैठने की कोशिश करेगा। जैसे देखो इनका निकाह होने वाला है, कहाँ गया बेटा आयान? तो कहाँ से कहाँ तक इमामा पहन के आ गया। तो निकाह की तैयारी करनी पड़ती है। तो हम भी जब अपने मसेरी पर लेटे होगा, अल्लाह कहेंगे मेरा जन्नती बंदा तेरा निकाह होने वाला है, तो वो अल्लाह कहेंगे ना 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 ना, आराम से लेटा रहे, निकाह पढ़ाने वाला अल्लाह होगा और निकाह तेरा होता चला जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकीना अला सुरुरिम मस्फूफा व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे जन्नती बंदे मसेरियों पर होंगे और हम उनका निकाह पढ़ाते चले जाएंगे। तो कायनात की पहली इबादत निकाह, आखिरी इबादत, इसको गुनाह करके बर्बाद मत करो।
فضول خرچی کر کے برباد مت کرو. کتنی جگہ کہتے ہیں نا بھائی یہ لاکھوں کا خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے. کیا جواب دیتا ہے مولانا؟ نہیں کرنے کا نہیں تھا لیکن سماج سوسائٹی میں رہنے کا تو کچھ تو کرنے کا نا. نہیں تو ناک کٹ جاتی ہے. تو ناک اتنی بڑی کائے کو رکھا ہے بھائی؟ جتنے پیسے میں تو نے نکاح کروایا کتنے بیواؤں کے گھر بس جاتے, کتنی کنواری لڑکیوں کے گھر بس جاتے, کتنی یتیم بچیوں کے گھر بس جاتے. میرے پیارو آج سے ارادہ کرو. دیکھو پہلے تو میں نے وہ کہا کہ 2 باتیں چھوڑ کر گئے ہمارے نبی. نمبر 1 قرآن, نمبر 2 5 وقت کی نماز. اور نکاح کے اندر ایک دم آسانی, ایک دم سادگی. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو بھی قبول فرمائے. اور میں چاہوں گا کہ وقت ہمارے پاس ابھی اور 15 منٹ کا ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑے قاری صاحب بھی یہاں پر ہے, قاری زبیر صاحب. وہ بھی مختصر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے, پھر نکاح کا خطبہ بھی ہوگا, پھر دعا بھی ہوگی. لیکن وہ پرچی ذرا مجھے پہنچا دو, کیونکہ میں اس وقت اتنا, یہ پرچی نہیں دوسری پرچی پہنچا دو. یہ پرچی مجھے پہنچا دو کیونکہ آج میں اپنے اندر اتنی خوشی محسوس کرتا ہوں. دوسری علماء والی بہت خوشی محسوس کرتا ہوں کیونکہ واقعتاً جب مجھے یہ پتا چلا کہ علامہ رفیق صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اللہ ان کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے. جب مجھے یہاں پتا چلا علامہ رفیق آ رہے, اللہ کی قسم آنکھوں میں آنسو جمع ہوئے کہ یہ تو میں نالائق کی غلطی ہے. مجھے ان کے پاس جانا چاہیے یا ان کو میرے پاس آنا چاہیے. لیکن بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے, ان کا تواضع بڑا ہوتا ہے. بلکہ میں کہتا ہوں علامہ رفیق جس زمانے میں بیان کرتے تھے نا, ہم اس زمانے میں طفل مکتب تھے, ہم چھوٹے چھوٹے تھے. میں ہر جگہ کہتا ہوں جتنے بیان کرنے والے نظر آتے ہیں نا, اصل انجن یہ ہے, ڈبے سب ہم لوگ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. علامہ آپ نے آ کر ہمارے دل کو اتنی خوشی دی, بلکہ ایک سبق سکھایا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو. دیکھو اتنے بڑے عالم ربانی اور زمانے کے شیخ الحدیث اور مفکر ملت اور جمعیت کے بڑے ایک رکن رکین, وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں. اللہ ان کی عمر میں بہت برکت عطا فرمائے. اسی طرح میں بہت خوش ہوں, میرے بہت پیارے رفیق محترم حضرت مفتی عمران صاحب دامت برکاتہم یہ بھی تشریف لائے. باقی یہ لمبے لمبے بیان میں زیادہ بیٹھتے نہیں, میرے کو معلوم ہے نا, لیکن آج اللہ کا احسان ہے, محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کی محبت کو قائم و دائم رکھے. اسی طریقے سے میں ہمارے مولانا اسماعیل صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ میں تو حیدرآباد سے شام کو 4 بجے اتر آیا, لیکن میں نے مولانا اسماعیل کو کہا اتنا تھکا ہوا ہوں, رات کو بیان کرنا ہے, بس آپ میرا خیال رکھنا ہے. اتنا خیال رکھا. اللہ ان کو اپنی شایع نشان, ان کے گھر والوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. اسی طرح علامہ کے بیٹے مفتی شفیق صاحب اور مفتی عتیق صاحب, یہ ہمارے مفتی عتیق صاحب نا, ان کی تو ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے. ہم انگلینڈ جاتے تو کہیں نہ کہیں یہ ٹکراتا ہی رہتا ہے. اللہ, اور صحیح میں اب یہ جب بولتے ہیں نا, اگر کوئی ان کا چہرہ نہ دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے, کلام تو ابا مبارک کا ہوتا ہے. تو اللہ ہمارے مفتی عتیق صاحب بھی ہے, مفتی شفیق صاحب بھی ہے, مولانا اسماعیل صاحب بھی, علامہ رفیق صاحب بھی ہے. اور میرے کو ایک بہت بڑی خوشی ہوئی کہ میرے بہت ہی پرانے بیٹے کی طرح سمجھو یا کیا سمجھو, آپ سب کو معلوم ہے آپ کے بروڈا کی جو آن بان شان ہے, 2 بڑے بڑے کرکٹر, ایک تو عرفان پٹھان اور ایک یوسف پٹھان. آج ان دونوں کے, یعنی ان دونوں کے جو سب سے بڑے ہیں, جن کی دعاؤں پر عرفان اور یوسف کو جو شان ملی ہے نا, قسم اللہ کے ماں باپ کے دعاؤں کے صدقے میں ملتا ہے. وہ والد ان کے حاجی محمود بھائی, وہ بھی یہاں پر تشریف ہے, حاجی محمود خان پٹھان, وہ بھی ہمارے درمیان میں تشریف فرمائے. حافظ نور الدین صاحب بھی ہے, قاری زبیر صاحب بھی ہے, اور میں یہ جتنے یہاں پہ وکلا حضرات, وکیل حضرات ہیں, وہ بھی بہت پیارے ہیں. میں تمام کا, پورے مجمع کا, اگر کسی کا نام لینا بھول گیا تو معاف کرے, لیکن میں تمام علماء کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس میں نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جن کے نام میں نے لیے. اس میں مولانا عارف صاحب بھی ہے, اور مولانا عتیق صاحب بھی ہے, مولانا اقبال صاحب بھی ہے, اور محمود خان پٹھان ہمارے عرفان اور یوسف کے والد محترم بھی موجود ہے, مولانا اسماعیل صاحب بھی ہے, اور بھی جتنے علماء کرام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے, آمین بولو. بلکہ اللہ پورے مجمع کو جنتی بنا دے, بولو آمین. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ باقاعدہ حالول
कालोल और बास्का से 56 सीट की बस तैयार की गई यहाँ से, और वो भी अल्लाह रसूल की निस्बत पर आए हैं, और अहमदाबाद के लोग भी यहाँ पर आए हुए। मैं इन तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और ख़ास करके ये अयान के अब्बा का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दावत सिर्फ इसलिए दी। अब मैंने पूछा हिदायत को इतनी लंबी दावत क्यों? कहा इसलिए कारी अहमद इली आ जाएंगे और उम्मत के कान में अल्लाह रसूल की बातें पहुंच जाएगी। अल्लाह इनकी नीयत को मबरूरा फरमाए, मकबूला फरमाए। अब मैं कारी जुबैर को कहूँगा मुख्तसर कुरान पाक पढ़े, उसके बाद में निकाह का खुतबा पढ़ाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं एजाज भाई श्याम वाला, ये आपके अब्बा है ना, वो कहाँ गए? अयान कहाँ गए? अयाज भाई और लाला भाई, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। इन्हीं की दावत पर हम सब यहाँ पर जमा हुए। हाँ जी, एक बात मैं बता दूं कि जो हमारा बेटा अयान जिसका निकाह होने वाला है बुशरा नाम की बेटी के साथ, इनके अब्बा ने ये सारा मजमे को सिर्फ प्यारे नबी की निस्बत पर जमा किया। वो एजाज भाई अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। लेकिन अभी मैं यहाँ बैठा था, मैं अयान बेटे से बातें कर रहा था। 1.5 साल पहले इनकी वालिदा मरहूमा साजिदा अल्लाह को प्यारी हो गई। काश आज वो होती तो अपने बेटे का निकाह देखकर कितना खुश हो जाती, अपनी बहू को देखकर कितना खुश हो जाती। लेकिन हम सब दुआ करें अल्लाह मरहूमा साजिदा की करवट करवट मगफिरत फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को उतूर से मुअत्तर फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला। हमारे कारी जुबैर ये दारुल उलूम मरकज़ इस्लामी अंकलेश्वर के सदर मुदर्रिस कारी है, बहुत अच्छा कुरान पाक पढ़ते हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। अब मैं दुल्हे मियाँ को यहाँ आगे आने की दावत दूंगा। शेख अयान इब्ने अयाजुद्दीन, शेख अयान इब्ने अयाजुद्दीन आ जाइए। बस कुर्सी की जरूरत नहीं, इनको बिठा दो। अयान बेटा तुम बैठ जाओ, माशाअल्लाह बैठ जाओ। निकाह से पहले दुल्हे के वालिद मोहतरम जनाब अयाज भाई श्याम वाले, लाला भाई जो बड़े अब्बा है, वो हज़रत कारी अहमद अली साहब मेहमान खुसूसी का इकराम फरमाएंगे। माशाअल्लाह। जनाब अयाज भाई श्याम वाले दुल्हे के वालिद मोहतरम, वो हमारे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब बड़ोदवी का साल से इकराम फरमाएंगे। माशाअल्लाह। भाई पर्ची दे दो जी। बेटे अयान इब्ने अयाजुद्दीन, आपकी इजाजत है? बेटे अयान इजाजत है? शुरू। अच्छा, तो सबसे पहले मैं वकील को दावत दूंगा। शेख मोहम्मद सफ़ी रसूल मियाँ, शेख मोहम्मद सफ़ी रसूल मियाँ वकील
آپ ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ. اچھا ہمارے وکیل صاحب شیخ محمد صفی، میں صرف اتنا پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بچی بشرا سے اجازت لی؟ انہوں نے اجازت دی، اور مہر 51,000 روکڑے نقد ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے وکیل جو ہے شیخ محمد صفی، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اب میں پہلے گواہ کو آواز دوں گا، شیخ حاجی نظام الدین حاجی ہشام الدین، آپ ہیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اور نمبر 2 شیخ محمد صادق محمد انور، آپ ہیں ماشاءاللہ. چلو تو اب نکاح کا خطبہ شروع. ہاں بالکل مسکراتے ہوئے کہو. 30 سال سے نکاح پڑھاتا ہوں، ایسے موقع پر مولی عتیق آج تک کسی نے منع کیا ہی نہیں میرے کو. میرے کو تو کسی نے پوچھا بھی تھا کہ مولانا یہ دلہے کو کائے کو گھوڑے پہ کائے کو بٹھایا جاتا ہے؟ میں نے کہا اسی لیے بٹھایا جاتا ہے، موقع ہے اب بھی بھاگ جا. لیکن نہیں بھاگا، آ گیا صاحب. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالسهول فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جی بہت میرے پیارے بیٹے ایان، آپ نے دیکھو ہمارے وکیل ہمارے درمیان موجود ہے، شیخ محمد صفی یہاں پر موجود ہے، وکیل بھی موجود ہے. انہوں نے ماشاءاللہ بشرا سے اجازت بھی لے لیے، اور دونوں وکیل بھی اور دونوں گواہ بھی موجود ہے، شیخ حاجی نظام الدین اور دوسرے شیخ محمد صادق، دونوں، اور یہ پورا مجمع ہی گواہ ہے. اب آپ نے وکیل کی وکالت سے دونوں گواہوں کی گواہی سے اور اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے شیخ بشرا بنت محمد صفی کو بعوض مہر 51,000 کیش 51,000 نقد آپ نے منکوحہ زوجہ یعنی آسان الفاظ میں بشرا کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا. جی میں نے قبول کیا.
ماشاءاللہ بارک اللہ لکما و جمع بینکما بالخیر. بہت دعا کرے اللہ تعالیٰ یہ جوڑے کو سلامتی عطا فرمائے. اب میں ہمارے عالم ربانی فیض سبحانی ہم سب کے بڑے بلکہ ہم سب کے سلطان الواعظین میں علامہ رفیق صاحب سے بہت ہی عاجزانہ ریکویسٹ اور درخواست کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں گے. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, میں جب بروڈا آیا ہوں الحمدللہ سب سے میں نے ملاقات کی ہے, لیکن آج اتنا تھکا ہوا ہوں اور اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے آیا ہوں, میں کسی کی ملاقات نہیں کروں گا. میں سلام کر دیتا ہوں, سلام کا جواب دے دے. انشاءاللہ آئندہ میں ملاقات. ہلو بھائی ایک بہت اچھا کارڈ بھی یہاں لایا گیا ہے, شادی کا کارڈ نہیں, یہ کارڈ لایا گیا. کل کون سا دن ہے؟ بولو 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 بولو. کل عصر کے بعد سب کو 80 مرتبہ درود پڑھنا ہے. اور کل کی بات نہیں, ایوری فرائیڈے آفٹر عصر نماز 80 ٹائمز ایک درود پڑھنا ہے, جس کے بارے میں لکھا جو پڑھے گا اللہ 80 سال کے گناہ معاف کریں گے, 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. کون سا درود؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. کن کو دیا ہے کارڈ؟ جوان سرکل جو یہاں کا ہے ان کو وہ کارڈ دیا ہے, جاتے جاتے آپ لے کر جانا. اب یہ لوگ درخواست کرتے کہ 2 منٹ, وہ بھی مولانا اسماعیل صاحب نے درخواست کی, میں ان کی درخواست کو ٹکرا نہیں سکتا. 2 منٹ اللہ کا ذکر کریں گے, جمعہ کی رات ہے, محمدی مہینہ ہے, 2 منٹ درود پڑھیں گے. سب پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بلند آواز سے پڑھو گے یا آہستہ؟ ارے بولو نا, ایسا لگتا تم سب کا نکاح پڑھوانے کا ہے. بولو نا, کون کون ذکر کریں گے؟ بولو ذکر کریں گے نا انشاءاللہ. شروع کریں اور پیار محبت سے شروع کریں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا معبود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا مشغود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا وهاب الا اللہ لا تواب الا اللہ لا سمیع الا اللہ لا بصیر الا اللہ لا حکیم الا اللہ لا علیم الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زبان پر محمد, آپ سب کی زبان پر بلند آواز سے, جمعہ کی رات ہے, صلی اللہ ہو مختصر والصلاة والسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حبیب اللہ محمد کلیم اللہ محمد خلیل اللہ محمد صفی اللہ محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأزواجهم وأصحابهم وأتباعهم أجمعين. والصلاة والسلام على سائر الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد بما خلقتنا وبما علمتنا وبما هديتنا وبما فرجتنا وبما أنقذتنا. ولك الحمد على كل نعمة أنعمتها علينا من قديم وحديث، من سر وعلانية، من قليل أو كثير، من خاصة وعامة، من حي أو ميت. ولك الحمد حتى ترضى بنا. وارض عنا حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن روعتنا واستر عوراتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ آنے والے مجمع کو قبول فرما، مستورات کے بیٹھنے کو قبول فرما، جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما۔ اے اللہ حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، اس بیان کو بے حد قبول فرما۔ یا الہ العالمین آنے والے مجمع کو قبول فرما، ہمارے بیوی بچوں پر رحم فرما، ہمارے بھائیوں پر اور ہمارے تمام متعلقین پر رحم فرما۔ یا الہ العالمین جہاں جہاں بھی قاری صاحب کا جانا ہو اس سفر کو آسان فرما، ہمارے سفر کو بھی آسان فرما، امت کے لیے خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، شیام والا فیملی کو قبول فرما۔ یا اللہ ایان اور بشرا کے نکاح کو قبول فرما۔ اے اللہ مبارک فرما، نیک اولاد کے صالح پیدا ہونے کا ذریعہ فرما۔ اس امت میں اور بھی ایان اور بشرا باقی ہیں، اے اللہ ان کی بھی مدد فرما، ان کے لیے بھی خوشی کا یہ دن دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ نیک اولاد پیدا فرما، دین کے داعی پیدا فرما۔ اے اللہ
دین کا کام کرنے والے پیدا فرما، ان کے اولاد میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ہماری اولاد میں برکت عطا فرما، ہمارے تمام متعلقین کے حق میں اس دعا کو قبول فرما، نکاح کو مبارک فرما، خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما، جتنا خرچ ہوا ہے قبول فرما، یا الہ العالمین اس کا نعم البدل عطا فرما، ہماری اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ اس شیام والا پریوار میں جتنے بھی مرحومین ہیں اور اسٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں تمام کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ یا الہ العالمین اپنے مقرب ترین بندوں میں ان سب کو شامل فرما، خیر کا ذریعہ فرما، کامیابی عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔